Good morning, students. Today we'll go through your science chapter 12. Topic is the solar system. Acha, you have already known about the solar system in earlier class. Here we will go a little bit details. Okay. So this is your chapter 12, the solar system. So here you go, this is the PDF file. Here the learning plan is like this. At the end of the lesson, learners will be able to do the following things. What? You are the learners, you are learning. Describe the solar system. You can describe about the solar system after reading the lessons yourself. Differentiate between planets and stars. What is the difference between a star and planet? The difference, basic difference you can also describe. Differentiate between planets and stars. So next is discuss about the natural satellite of Earth. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट उसका बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट कैसे होता है उसका बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड लास्टली और क्या एक्सप्लेन करोगे? द रीजन बिहाइंड चेंज ऑफ सीजन्स. जो सीजन चेंज होता है उसका क्या रीजन है. सो द लर्निंग प्लान इज लाइक दिस. You can describe at the end of the lesson. You can describe this following: the solar system. You can describe the difference between planets and stars. See, you can describe the solar system and you can differentiate. Means क्या क्या दोनों में क्या क्या तुलना है, तुलनात्मक स्टडी या डिफरेंशिएशन, पार्थक्य क्या है प्लैनेट्स एंड स्टार्स के बीच में. एंड यू कैन डिस्कस द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका बारे में भी डिस्कशन कर सकते हो. एंड यू कैन एक्सप्लेन बोथ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड रीजन विद द सीजन चेंजेस. सो वी लिव ऑन ए वेरी बिग प्लैनेट कॉल्ड अर्थ. सो अर्थ इज ए वेरी बिग प्लैनेट. It gets its light and heat from the sun. Sun is the main source of energy which gives not only heat but also light. So it is in the center of our universe. So we live in a very big planet called Earth. Earth is a very big planet we live in, and it gets light from heat and heat from sun. It both gets light and heat from the sun. Earth gets round the sun in a nearly circular path. Earth जो sun का चारों ओर घूमता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है. ओके, Earth moves around the sun in a nearly circular path. In fact, there are 8 planets going around the sun. Okay, the sun has a family known as the solar system. So solar system is the family of the sun. The system of the family of sun is called solar system. So like Earth, there are other planets, and there are total 8 planets going around the sun. The sun has a family known as the solar system. See, this is the picture of the solar system. Here, this is the sun, the yellowish portion, and these are the different planets moving around the sun in their respective orbits or path. Like Earth, Earth is moving around the sun through its orbit. Similarly, other planets are also moving around the sun by their respective orbits. The sun and all the objects that are around it make up our solar system. The sun and all the objects that travel around it make up our solar system. तो हमारा जो सोलर सिस्टम क्या है ना, सन एंड ऑल द प्लैनेट्स व्हिच मूव अराउंड द सन, दैट मेक्स ए फैमिली कॉल्ड सोलर सिस्टम. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का ये सेंटर, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट हैज ए स्टार, इट इज ए स्टार दैट गिव्स
out heat and light. Like other stars, it is also a star. Sun is also a star which gives light and heat. It is the main source of energy in the entire solar system. So sun is the main source of energy. ये पूरा जो एनर्जी, हीट एनर्जी बोलो या लाइट एनर्जी बोलो, हर एनर्जी का ये मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है. ये दोनों एनर्जी का मुख्य स्रोत है सन. सोलर सिस्टम में सन का जो एनर्जी है क्या क्या है? हीट एंड लाइट. ये जो हीट एंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी उसका मुख्य स्रोत है सोलर सिस्टम में सन का. The heavenly bodies revolving around the sun include the heavenly bodies revolving around the sun include the 8 planets. जो heavenly bodies सन का चारों ओर घूमता है उससे उनका अंदर ये 8 planets भी है. A planet is a large spherical object that revolves around a star. Planets, अच्छा, the planet is a large spherical object. These are all the picture of different spheres. So see, this is a sphere, this is another sphere. All these are very spherical objects. So the heavenly bodies revolving around the sun include 8 planets. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो तुम्हारा ये जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से ये अर्थ है, ये सैटर्न है, ऐसे करके सब ऑल अदर प्लैनेट्स भी है. ये जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट. सो द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन the heavenly bodies revolving around the sun include the 8 planets, and a planet is a large spherical object that revolves around a star. तो planet क्या है? स्टार का चारों तरफ ये एक तो बड़ा स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, अंडाकृति ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार का चारों ओर घूमता है. हियर द स्टार इज द सन. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. कोई भी प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है. दे रिसीव लाइट फ्रॉम देयर स्टार. ओके, तो दे रिसीव द लाइट फ्रॉम द स्टार. हियर द स्टार इज सन. दे रिसीव लाइट फ्रॉम देयर स्टार. व्हेन प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट दिस लाइट फ्रॉम द स्टार दे अपीयर शाइनिंग. जब ये उनका स्टार से ये लाइट रिसीव करके रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये शाइनी दिखते हैं. ओके, द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आउटवर्ड फ्रॉम द सन आर लाइक दिस. यू सी द 8 प्लैनेट्स which are outward from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, okay, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So देखो क्या क्या है, क्या क्या पढ़े. The 8 planets are from the sequence. The nearest planet which is nearest to the sun is called the Mercury. Okay, Mercury is the nearest planet. After Mercury, Venus. This is the second planet, is the Venus. Third one is the Earth. यहाँ पे देखो अर्थ में ये अफ्रीका का मैप दिखता है. ये सबसे इंडिया से बड़ा ये कंटिनेंट अफ्रीका का तस्वीर दिखता है. तो अर्थ है. अर्थ का बाद मार्स है जो स्लाइट लाल दिखते हैं. ओके, देन जुपिटर है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है. देन सैटर्न है जिसका चारों ओर एक तो इसे ओवल का माफिक शेप है, वो सैटर्न है. लास्ट but one is Uranus and lastly Neptune.
Some of the planets have one or more natural satellite. Okay, some of the planets have one or more than more natural satellites. अच्छा, हर एक कुछ प्लैनेट्स का एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट रहता है. अच्छा, कॉल्ड मून्स को मून बोलते हैं. ये नेचुरल सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट. जैसे सन का चारों तरफ प्लैनेट मूव करता है, वैसे नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट का चारों तरफ मूव करता है. जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है ना, मून है. सो ऐसे दूसरा प्लैनेट का भी मून होता है. कुछ प्लैनेट्स का एकाधिक भी मून होता है. सो सम ऑफ द प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल प्लैनेट. जैसे अर्थ का वन नेचुरल प्लैनेट है, वन मून है. बाकी कुछ प्लैनेट्स का वो एक से ज़्यादा भी मून है. मून्स आर नथिंग बट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स. A natural satellite is a heavenly body like planets, like stars. So stars, planets, natural satellites are all heavenly bodies. So a natural satellite is a heavenly body revolving around a planet. Planet का चारों ओर घूमता है. The planets of our solar system can be divided into two groups. जो planets solar system में दो ग्रुप में डिवाइड हो सकता है. मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर 4 इनर प्लैनेट्स. ये 4 इनर प्लैनेट्स है. क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. दीज 4 आर आवर इनर प्लैनेट्स एंड दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स. रॉक्स से तैयार है. सो दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स. ये जो प्लैनेट्स अर्थ में रॉक्स है कि नहीं, पहाड़ है कि नहीं है, सिमिलरली मार्स में भी है और वेनस में भी है, मर्क्यूरी में भी. ये चारों जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स चारों प्लैनेट्स है इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स. व्हाइल ऑन द अदर हैंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 4 आउटर प्लैनेट्स. दे आर मैसिव गैस प्लैनेट्स. ये जो चारों प्लैनेट्स है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 4 outer planets. They are massive gas planets because they are called gas giants. वो planets में बहुत गैस रहता है. जैसे इनर planets में रॉक्स रहता है, बहुत ज़्यादातर हिल्स रहता है, माउंटेन्स रहता है. ऐसे उसको रॉक प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं इनर प्लैनेट्स को. आउटर प्लैनेट्स जो चारों है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उसमें मासिव गैस रहता है, इसलिए उसको गैस जायंट्स भी बोलते हैं. तो वी मस्ट नो दैट द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 ग्रुप्स. 4 planets are inner planets. Who are they? Mercury, Venus, Earth and Mars. And the other 4 planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are outer planets. The inner planets are called terrestrial planets or rocky planets because these planets, inner planets, are made up of rocks, while the outer planets are made up of massive gas. So they are called gas planets or gas giants. ठीक है? Here let us learn more about these planets. देखो ये इसमें ये जो टेबल है, इसमें सब फैक्ट्स, नंबर ऑफ मून्स और ड्यूरेशन ऑफ ए डे, ये सब दिया गया. जैसे प्लैनेट मर्क्यूरी ऑल्सो नोन एज बुध, उसको बुध भी बोलते हैं, मर्क्यूरी या बुध बोलते हैं. मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. सन का सबसे निकटतम जो प्लैनेट है या ग्रह है वो है बुध या मर्क्यूरी. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज नॉट ओनली द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, it is but also it is the smallest planet in the solar system. It is slightly bigger than earth moon. जो अर्थ का जो मून है उससे थोड़ा बड़ा है. इट इज स्लाइटली बिगर देन द अर्थ मून. इट इज वेरी हॉट around 430 degrees centigrade during the day and extremely cold around -180 degrees centigrade at night.
So it is hotter than Earth and colder than also Earth, and it doesn't have any moon. Moon zero, and ड्यूरेशन ऑफ ए डे, एक डे का ड्यूरेशन 59 अर्थ डेज, 24 अर्थ का जो दिन है टोटल 68 दिन में एक बार वो सूर्य का चारों ओर घूमता है। जो बुध है या जो मर्क्यूरी है वो 59 अर्थ डे में एक बार वो सन का चारों ओर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे वेनस। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड क्लोजेस्ट टू अर्थ, ये अर्थ का आसपास है, उसको शुक्र बोलते हैं। तो इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे गर्म प्लैनेट 470 डिग्री सेंटीग्रेड है इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये जितना प्लैनेट है सबसे गर्म प्लैनेट वेनस है या शुक्र है, जिसका टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून। मून का बाद नेक्स्ट इसको बोलते हैं जो शुक्र को। ओके, ये इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून। इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। सनसेट का बाद या सनराइज का पहले ये दिख पाएंगे। सो इट इज ऑफन रेफर्ड टू अस एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। संध्या तारा बोल के हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, मोस्टली इवनिंग स्टार बोलते हैं, संध्या तारा बोलते हैं शुक्र को। ये एक तारा का माफी दिखाई देता है। इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी आफ्टर मून इन द स्काई। अच्छा, ये कितना दिन में, कितना अर्थ डेज में घूमता है सूर्य का चारों ओर? 243 अर्थ डेज। वेनस रिवॉल्व्स अराउंड द सन by 243 अर्थ डेज। सो 59 अर्थ डेज में मर्क्यूरी घूमता है, 243 अर्थ डेज में वेनस घूमता है। कमिंग टू आवर ओन अर्थ, दैट इज पृथ्वी। ये हिंदी में सब लिखा है, ये जो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये 8 जो ये ग्रह है सबका हिंदी टर्म या उड़िया टर्म में भी है। तो अर्थ या पृथ्वी, ये दिस इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द बिगेस्ट रॉकी प्लैनेट। जितना रॉकी प्लैनेट है सबसे बड़ा रॉकी प्लैनेट है अपना अर्थ। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3 भाग से 2 भाग अगर लेंगे तो ये पानी है। वाटर जो अर्थ का 2/3 यानी 2/3, 3 भाग अगर अर्थ को करेंगे उसका 2 भाग है पानी और 1 भाग है स्थल भाग या जमीन। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन एट टू हैव लाइफ। ये पृथ्वी एकमात्र प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। लाइफ है मतलब जीवन है, हर प्राणी रह सकते हैं, बच सकते हैं अर्थ में। इट इज हैविंग 1 मून। हमारा कितना मून है? 1 मून। एंड हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू मूव अराउंड सन? 1 डे और 24 आवर्स। अर्थ डे का हिसाब से 1 डे में अर्थ सूर्य का चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट आएंगे मार्स या मंगल। मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। द सरफेस ऑफ मार्स इज रेड बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। इट इज कॉल्ड ए रेड प्लैनेट बिकॉज इट लुक्स लाइक रेड एंड इट इज हैविंग 2 मून एंड इट टेक्स 24.6 आवर्स। मीन्स मार्स से सामान्य अधिक समय लेता है मार्स सन का चारों ओर घूमने के लिए। 24.6 माने लगभग 24.5 घंटा लेता है। नेक्स्ट आएंगे जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द फास्ट गैस प्लैनेट, फास्ट गैस जायंट, ऑल्सो कॉल्ड फास्ट गैस जायंट। इट इज 5th फ्रॉम सन। अगर डिस्टेंस बोलेंगे सन से 5th, इसको बृहस्पति बोलते हैं। इट इज द फास्ट गैस प्लैनेट, इट इज द फास्ट गैस जायंट और इट इज द फास्ट आउटर प्लैनेट्स। अभी तक जितना प्लैनेट के बारे में हम डिस्कशन किए, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों रॉकी प्लैनेट्स है एंड चारों इनर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट्स का पहला आउटर प्लैनेट जुपिटर या बृहस्पति,
It is the fifth planet from the sun, and it is a gas giant, the first gas giant of our solar system. It is 11 times wider than Earth. आज से 11 गुना बड़ा है. 11 times wider, चौड़ा. अर्थ जितना चौड़ा है उससे 11 गुना चौड़ा है. अच्छा, इट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. स्पिनिंग माने घूरना. वो जो घूर रहा है, द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. इट इज ए वेरी स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर. इट हैज ए वेरी स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर. ये इसका एटमॉस्फेयर बहुत स्टॉर्म होता है इसका एटमॉस्फेयर में. ये 69 मून है. इसमें सबसे हाई ज़्यादा मून जुपिटर में या बृहस्पति में. एंड इट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. इसीलिए इसको कितना आवर लगता है, दिन तो छोड़ो, आवर लगता है ओनली 10 आवर्स. 10 आवर्स का अंदर ये सन का चारों ओर घुमाता है. इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट. इट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट एंड इट टेक्स ओनली 10 आवर्स टू मूव around the sun. And Saturn is the sixth planet from the sun. It is the second largest planet after Jupiter. Jupiter के बाद ये second largest planet. कौन सा? Saturn या Shani. Saturn is surrounded by several spectacular rings. Spectacular rings. 7 of these rings are quite prominent. अच्छा, इस सैटर्न का चारों तरफ स्पेक्टेकुलर रिंग्स रहता है जो कि 7 of these rings are quite prominent. ये जो रिंग्स है उसका रिंग्स का अंदर से 7 रिंग्स बहुत प्रोमिनेंट. और ये 62 मून्स है इसमें और ये 10.7 आवर्स लेता है. बृहस्पति से थोड़ा ज़्यादा आवर्स लेता है. 0.7 आवर्स मोर लेता है घूमने के लिए. देन यूरेनस या जिसको ऑरून बोलते हैं. अच्छा, यूरेनस इज द 7th planet from the sun. Uranus is the 7th planet from the sun. देखो, यूरेनस को ऑरून बोलते हैं. इट इज द 7th planet from the sun. It is the 3rd largest planet in the solar system. First is Jupiter, second Saturn, next Uranus. Unlike other planets, it rotates sideways. अच्छा, sideways में रोटेट करते हैं. That makes it go around the sun like a rolling ball. बॉल जैसे रोल होता है वैसे ही वो घूमता रहता है सन का चारों ओर. It has 27 moons and it takes 17 hours to move around a sun. Next, last one, Neptune या Varun. Neptune is the 8th planet from the sun. It is the windiest of all planets in the solar system. Windiest means हवा बहुत बहता है, स्टॉर्म ज़्यादा होता है. इसका यूरेनस में, यूरेनस इज द 7th planet from the sun. It is the 3rd largest planet in the solar system. Its environment is very cold and windy. यूरेनस का या वरुण का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा और विंडी. यूरेनस इज ए ह्यूज has a unique movement. Unlike other planets, it rotates sideways. That makes it round the sun like a rolling ball. Neptune is the 8th planet from the sun. It is the windiest of all planets in the solar system. जितना सोलर सिस्टम प्लैनेट है सबसे ज़्यादा हवा यहाँ पे है नेपच्यून में. इट इज़ अबाउट 4 times वाइडर देन अर्थ. अर्थ का 4 गुना बड़ा है और 13 मून है और 16 आवर्स लेता है घूमने के लिए. ये टेबल याद रखना है, इसमें सारे फैक्ट दिया है. प्लैनेट का नाम, उसका फैट्स, कितना नंबर मून है और ड्यूरेशन ऑफ ए डे. अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन ऑफ ए डे, कितना ड्यूरेशन डे या आवर कितना होता है उसका बारे में लिखा है. द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट.
अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है. सम अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो हैव देयर ओन मून. जैसे कि हम देखें बृहस्पति में सबसे ज़्यादा मून है. When we stand outside in the sunlight during the day, we feel hot. This is because the sun is made up of hot gases and gives out light and heat. हमको लाइट एंड हीट देता है सन, इसीलिए सन में हॉट गैसेस भी है. सो हमको गर्मी लगता है. डू यू फील हॉट व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड इन द मून लाइट एट नाइट? नो, बिकॉज द मून इज मेड ऑफ हार्ड रॉक्स. बहुत हार्ड रॉक से मून तैयार है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. सन से लाइट, उसको सन का लाइट इसका ऊपर में गिरता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अर्थ में गिरता है. द मून ऑल्सो हैज नो एयर. मून is neither having any light nor having any air. Okay, so moon is the natural satellite of earth. It is the only satellite of earth. Earth has one moon. So and other planets, some other planets are having more than one moons. So दिन में हम जब खड़ा रहते हैं हमको गर्मी लगता है. See the feeling of this boy. Here the girl is standing in a moonlit night. She is not feeling any hot. She is feeling very normal feeling. Okay, so this is because sun is having its own light, but moon doesn't have. Moon is having no light. Moon doesn't have any air. It has rocks, and we feel naturally colder in moonlit night. Okay. Moon receives gets light from sun and reflects sun's light to earth. So we get light from moon. Okay. Next, movement of earth. The rotation. Earth shows two kinds of movement. One is rotation, another is revolution. So you all know what is rotation. The rotation of earth is the spinning motion of earth of its axis. Earth का चारों ओर घूमता है. That is called rotation. जो सन के चारों ओर घूमेगा उसको रिवोल्यूशन बोलेंगे, लेकिन अपना चारों ओर जो घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इसका मान लो ये लाइन है एक्सिस, एक्सिस का चारों ओर जो घूमेगा उसको बोलते हैं रोटेशन. सो द रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर एक लाइन हम खींचेंगे दैट इज कॉल्ड द एक्सिस. दैट इज एन इमेजिनरी लाइन. इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, so that line will be called as the axis of the earth. And if the sun moves around its axis, it is the movement is called the rotation. It is titled at an angle of 23.5 degree. वो जो एक्सिस कितना डिग्री में ऐसे ही रहेगा 23.5 डिग्री. Each earth completes one rotation on its axis in 24 hours. 24 hours में अर्थ अपना चारों ओर कवर करता है, उसको रोटेशन बोलता है. दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. ये जो अपना एक्सिस का चारों ओर लेता है उसको डे एंड नाइट बोलते हैं. ओके, ये साइड नाइट है ब्लैक कलर में देखो. ओके, ये साइड में वाइट है. दिस इज ब्राइटर, दिस इज डार्कर. द डार्कर साइड of the earth is becomes when it happens when it is night, and the brighter side is in day. So this is day, this is night. When sun falls on this side, the part where sun's rays is falling is the daytime. When it moves in this side, this becomes night. So as it is moving, because sun is fixed at one point, earth is moving, so the sun rays falls on the portion of the earth in the daytime, and that when it rotates, it goes towards the night hours. Okay,
So in night, sun's rays cannot fall. In day it falls. So some part of the earth is having a daytime, some part of the earth is having a night time at any given point. Okay. So you know that earth is like a bulb. When earth rotates on its axis, whole of axis, half of its faces the sun. उसका आधा फेस सन को फेस करता है. This half of earth gets light and it results in the formation of day. जो आधा सन का ओर रहता है वो सन से लाइट पाता है और वो डे फॉर्म करता है. The other half of the earth which faces away from the sun doesn't get any light, so it is night on this part of the earth. India and the United States of America are situated on the opposite side of earth. इसीलिए जब इंडिया में दिन होता है अमेरिका में रात होता है एंड वाइस वर्सा. ओके. When India faces the sun, USA is in the part of earth that is faced away from the sun. Thus it is a daytime in India while it is a night in the USA. In the same way, when it is a daytime in the United States, it is night in India. Let us understand how days and nights are formed with the help of an activity. यह activity दिया है. Okay. A globe, a torch, a red mark and a tape. Place the globe on a table. Globe में ये टेबल में globe रखो. Okay. On the part of the globe that shows India, mark a red dot. इंडिया में एक रेड डॉट दो. इंडिया मानचित्र जहाँ है. Shine the torch over the red dot. Red dot में साइन करो. Slowly rotate the globe from the west to east. West से east तक rotate करो ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज का हिसाब से. ओके. देन क्या ऑब्जर्व करेगा? when the red marks was lighted, जब रेड मार्क्स को लाइट करेगा, the portion of the globe containing it was lighted as well. मतलब इंडिया का ऊपर जब तुम रेड जो मार्क करोगे वहाँ ऊपर लाइट टॉर्च का लाइट गिराएगा तो आधा फेस में लाइट गिरेगा और वो दिन होगा. When you moved the globe, the red dot moved away slowly, went into darkness. This dark portion of the globe indicates night. If you continue to rotate the globe, the red dot will come back into light. This is exactly how day and night occur on Earth. Next is revolution. Then what is revolution? Quickly let us see. You learned that Earth rotates on its axis which is tilted. Tilted means tilted. Actually tilted means 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो थोड़ा वक्राकार दिशा में रहता है, थोड़ा लीन होकर रहता है, टिल्ट होकर रहता है. So you learn that the earth rotates on its axis which is tilted. There is another imaginary line called equator. जैसे एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक हम खींच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. वैसे जो कि थोड़ा टिल्ट है, जैसे 23.5 डिग्री में अवस्थित है. वैसे अनदर इमेजिनरी लाइन क्या है? इक्वेटर या विषुव रेखा इन ओरिया, which divides earth into two halves, northern hemisphere and southern hemisphere. अगर उसको लॉन्गिट्यूडिनली हम इसको डाइसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली मीन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर ऊपर से नीचे उसको विभक्त करेंगे तो वो जो इमेजिनरी लाइन होगा 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टिल्ट पोजीशन में या एंगल में, वो होगा इसका एक्सिस. अगर हम हॉराइजॉन्टली उसको बाइसेक्ट करेंगे या विभक्त करेंगे, वो जो लाइन खींचेगा बीच में फ्रॉम विच विल डिवाइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ साइड में जो पार्ट होगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, साउथ साइड में जो पार्ट होगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे. वो जो दो हेमिस्फीयर क्रिएट होता है और बीच का लाइन को इक्वेटर बोलते हैं. सो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. जो पाथ में अर्थ सन का चारों ओर घूमता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन.
तो सन का चारों ओर जो मोशन अर्थ का होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अर्थ टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटा लेता है, जिसको हम एक साल बोलते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हैज ए हैंड इन द चेंज ऑफ सीजन। ये जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसका हाथ रहता है सीजन चेंज के लिए। ये हमारा जैसे सीजन रहता है, वेरियस सीजन, ब्रॉडली हमारा क्या होता है, समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन, मिनिमम 3 सीजन होता है, मैक्सिमम 6 सीजन होता है। जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, वैसे करके टोटल 6 सीजन होता है। सो अर्थ हैज ए tilted axis, okay, because of this at certain position of earth hemisphere will be tilted towards the sun while the other hemisphere will be tilted away from the sun। जैसे tilted axis है जो कि तिर्यक है 23.5 डिग्री एंगल में वो टिल्ट होके है, तो टिल्टेड एक्सिस होने से उसका कुछ पोर्शन because of its position of the axis, some position of Earth's hemisphere will be towards the sun and some other will be away from the sun। ठीक है, the hemisphere tilted towards the sun receives direct sun rays and gets heated। जो हेमिस्फीयर डायरेक्टली लाइट पाता है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है जल्दी। द पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस समर, दैट पार्ट एक्सपीरियंस समर। समर सीजन कब होता है, जो सीजन में सन का रेज बहुत अर्थ का निकटतर होता है और अर्थ का पोर्शन, अर्थ का जो पोर्शन सन का निकटतर होता है और डायरेक्ट सन रेज पाता है और जल्दी गर्म होता है, वो पोर्शन में समर सीजन हो जाता है। ठीक है, सो अर्थ हैज ए टिल्टेड एक्सिस बिकॉज ऑफ दिस एट सर्टन पोजिशन वन ऑफ अर्थ हेमिस्फीयर विल बी टिल्टेड टुवर्ड द सन। वो पोजिशन में चलते कुछ पोजिशन अर्थ हेमिस्फीयर का कुछ पोर्शन टिल्टेड होता है सन का ओर, और वो हेमिस्फीयर जल्दी, और कुछ हेमिस्फीयर वो अवे फ्रॉम द सन रहता है। द हेमिस्फीयर tilted towards the sun receive direct sun rays and gets heated and experience the summer। During the same time other hemisphere gets slanted sun rays and is cooler। जो डायरेक्ट सन पाता है वो समर, वो हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, और जो स्लैंटेड सन रे मिलता है जो हेमिस्फीयर में, उसमें क्या होता है, विंटर होता है नेचुरली ना। सो दिस पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस समर व्हाइल दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द स्लैंटेड सन रेज रिसीव्स गिव्स बिकम्स कूलर एंड दैट पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस विंटर्स। सो समर का अपोजिट विंटर। सो since earth has a tilted axis, because of this at certain point of earth experience the direct sun rays and thus gets heated and experience summer season, while the other portion that gets slanted sun rays and gets less heat, which means they are naturally cooler than this place, and some winter season happens in those part, those gets the slanter sun rays which are cooler. So this part of earth experience winter. For example, when north hemisphere is tilted towards the sun, it has summer. The southern hemisphere has winter during the same time। माने at a given time, if the northern hemisphere is experiencing summer, the southern hemisphere will experience winter। Clear?
On the other hand, when the northern hemisphere is tilted away from the sun, it has winter. The southern hemisphere has summer during that time. Thus, the tilt of Earth together with its motion around the sun called season. The tilt of sun around the tilt of Earth around with its motion, माने मोशन का हिसाब से सन जो टिल्ट होता है, टिल्ट होके अपना ओर चारों ओर घूमता है और अर्थ का चारों ओर घूमता है, जिसका चलते क्या होता है, सीजन होता है. तो न्यूजीलैंड लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हेयरएज इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब अगर ग्लोब देखोगे, ये ग्लोब का इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहेगा, न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर रहेगा. So New Zealand lies in the southern hemisphere, whereas India lies in the northern hemisphere. You can look at the globe. When New Zealand has summer, India will have a new winter. After 6 months, the position of Earth around the sun changes. Then the half that had summer now has winter then, and the half that had winter earlier now has summer. So ये vice versa, just opposite. मान लो इंडिया में समर है, न्यूजीलैंड में विंटर, न्यूजीलैंड में समर है, इंडिया में विंटर. सो अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन सडनली, इट गोज राउंड द सन ग्रेजुअली. वो सन का चारों ओर धीरे धीरे जाता है. दैट इज वाई वी हैव शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग. इसीलिए ऑटम एंड स्प्रिंग इसका स्मॉल ड्यूरेशन होता है. सो अर्थ डजंट चेंज इट्स पोजिशन, सडनली चेंज नहीं करता है, इसीलिए ग्रेजुअली जाता है सन का चारों ओर. दैट इज वाई वी हैव शॉर्ट सीजन इन ऑटम एंड स्प्रिंग. देखो ये जो पिक्चर है, जैसे कि ये विंटर है, ये समर है, ये साइड सन का डायरेक्ट रेज गिरता है, समर है, तो ये साइड होगा, ये दोनों साइड होगा, क्या होगा, समर होगा, उसका बैक साइड विंटर होगा. तो ये भी पूरा आधा से ज़्यादा समर होगा, ऊपर हिस्सा स्प्रिंग होगा. ये भी सिमिलरली ये थोड़ा सा समर होगा, निचला हिस्सा ऑटम होगा. ऑटम एंड स्प्रिंग कम समय. तो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये चारों सीजन के बारे में दिया गया, इसमें रेनी के बारे में नहीं दिया गया. ठीक है. So this is all about the portion, that is chapter 12, and topic is the solar system. So students, you should read this entire chapter having the topic the solar system and do the homework given at the end of this chapter. Thank you.